Hello students, now we will discuss here the chapter 8 of NCERT motion chapter 8 of NCERT. In some books it is as a chapter 1, but the syllabus covered in all the books, all the CBSE books, it is almost same, it is same. So are you going for NCERT or any other book of CBSE, you can go through it. It is very important chapter 8 of the NCERT. It is very important chapter. इसमें हम जानेंगे मोशन के बारे में. What is the motion? So हम में से हर किसी ने देखा होगा what is motion actually. Motion is a movement of any object from one position to the another position with respect to time. जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे ट्रैवल करता है किसी पर्टिकुलर टाइम में, तो व्हाट विल से इट इज इन मोशन, द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. फॉर एग्जांपल, इफ यू आर सिटिंग इनसाइड द ट्रेन एंड वन पर्सन is watching from the platform, one person is standing on the platform and he is watching you, what you will say? Your train is moving. He will say you are in motion with respect to the platform, you are moving with respect to the person who is standing on the platform. Same चीज क्या है, इफ यू आर सिटिंग इनसाइड द ट्रेन एंड इफ यू सी ऑन द रोड साइड, तो क्या होगा, यू ऑब्जर्व कि ट्रीज जो है वो पीछे की तरफ जा रहे हैं, ट्रीज आर गोइंग बिहाइंड, मीन्स आपको लगेगा ट्रीज जो है क्या है, मोशन में है. तो ये मोशन के एग्जाम्पल्स हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू आर सिटिंग इनसाइड द बस, द पर्सन हु इज सिटिंग नियर टू यू, क्या बोलोगे, he is not in motion or he is at rest with respect to you. वो मोशन में नहीं है, आपके पास में ही बैठा हुआ है, तो आपको नहीं लगेगा वो मूव कर रहा है. बट द पर्सन हु इज सीइंग फ्रॉम आउटसाइड, ही विल से he is in motion. Second case, for example, see motion के example you can say the sun is rising, the sunset is happening, and all these are examples of motion. The earth is moving, seasonal change or climate change is happening. These all are because of the motion of the earth around the sun. For example, okay, one more example if I take, if I say am I in motion, if I ask you am I in motion, क्या मैं motion में हूँ, what you will say? You will say no, you are not in motion, you are at rest, you are at rest, you are not in motion. लेकिन एक बंदा, एक person who is seeing me from the moon, what you will say? Am I in motion with respect to the person who is seeing me from the moon, or am I at rest? He will say I am in motion, क्योंकि earth is revolving around the sun, earth is revolving around the sun. with respect to moon देखेंगे तो earth is moving, तो earth move कर रही है, then I am also moving. So with respect to the person who is seeing from the moon, he will say I am in motion. इसका मतलब मोशन के लिए हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें आती हैं. मोशन के लिए कौन कौन सी मेन बात हो गई, देखने वाला पर्सन कहाँ है, विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, वेयर इज द ऑब्जर्वर, दैट मैटर्स. तो ऑब्जर्वर कहाँ है, जब ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठा हुआ है, यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, मीन्स आपके रिस्पेक्ट में मैं क्या हूँ, रेस्ट में हूँ. बट द पर्सन हु इज सीइंग फ्रॉम द मून, हु इज सीइंग मी फ्रॉम द मून, उसके रिस्पेक्ट में मैं मोशन में हूँ. तो इसके लिए एक टर्म आती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस. उसके लिए बोलते हैं व्हाट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वेयर इज योर ऑब्जर्वर. ओके, तो ये मोशन के बारे में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो गए. अब हम और सारी चीज़ें पढ़ेंगे. मोशन की हम डेफिनीशन लिख लेते हैं पहले. व्हाट इज द मोशन, मोशन की डेफिनीशन, मोशन इज द change of position of any object with respect to time, change of position of any object with respect to time, it is known as motion. So this is known as motion. So first thing, change of, यहाँ पे वर्ड आता है position. Change of position of any object means कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं. व्हाट इज द एग्जाम्पल, इफ यू से माई हाउस, माई स्कूल, इफ यू से माई स्कूल इज, हियर इज योर स्कूल, my school is
5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। यहाँ पे बोल लीजिए कोई रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन। यू से माई स्कूल इज 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। ओके, तो हम स्कूल की पोजीशन को कैसे डिफाइन कर रहे हैं? विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? विद रिस्पेक्ट टू रेलवे स्टेशन। किसी की पोजीशन डिफाइन करने के लिए कोई ना कोई रेफरेंस रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? रेफरेंस। रेफरेंस मतलब कोई डिस्टेंस जो है, इफ यू आर शोइंग, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? किसके रिस्पेक्ट में? कोई रेफरेंस तो होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से माई हाइट इज कितनी? माई हाइट इज 1.7 मीटर। इफ आई से माई हाइट इज 1.7 मीटर, तो मेरी 1.7 मीटर हाइट कहाँ से है? विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ये जो हाइट है मेरी, वो किसके कहाँ से है? 1.7 मीटर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, जहाँ पे मैं अभी खड़ा हुआ हूँ। सो दैट इज 1.7 मीटर। मीन्स व्हाट इज माई रेफरेंस हियर? दिस इज माई रेफरेंस। ग्राउंड जो क्या है यहाँ पे? रेफरेंस है। ये जो पोर्शन क्या है? वो रेफरेंस है। इसका मतलब व्हेन यू टेक एनी मेजरमेंट्स, when you define any position of any object, you are defining the position of school here. You are saying that your school is 5 kilometer away from the railway station. So your reference point is railway station and here is your school. So क्या है इसका मतलब? To define the position, to define the position, to define the position of any object, to define the position of any object, we need reference point. We need reference point, or you can say we need origin. origin क्या होता है? origin ऐसा पॉइंट होता है जिसके कोऑर्डिनेट हम मान के चलते हैं 0 0 है। मतलब ये कोई कोऑर्डिनेट है किसी हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन। इफ आई वांट टू शो, तो क्या करूंगा मैं? इस पॉइंट को 0 मान के चलूंगा। आई विल शो द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, कि मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे है कितना मीटर? फॉर एग्जांपल 5 किलोमीटर। तो क्या? ओरिजिन इज द रेफरेंस पॉइंट हियर। ओके, तो ओरिजिन इज द रेफरेंस पॉइंट हियर। तो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, तो क्या है? वी नीड द रेफरेंस पॉइंट। सेकेंड थिंग हम यहाँ पे पढ़ेंगे, हम पढ़ते हैं मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे पढ़ेंगे मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। चैप्टर आप 11th क्लास में भी पढ़ेंगे। सेम चैप्टर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, उस चैप्टर का नाम होगा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ये चैप्टर आप 11th क्लास में भी पढ़ेंगे, 11th क्लास में पढ़ेंगे। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसके बारे में। लेकिन आप यहाँ पे मैं आपको इतना पढ़ा दूंगा कि आपको 11th क्लास के ऑलमोस्ट 80% 90% जो है सिलेबस यहीं पे कवर हो जाएगा। 80% टू 90% सिलेबस आपका 11th क्लास का यहीं पे कवर हो जाएगा। आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं फेस होगी व्हेन यू गो टू द 11th क्लास। इवन आपके IIT JEE में जो भी बेसिक फंडामेंटल्स हैं, जो भी बेसिक फार्मूलाज यूज होते हैं, वो भी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा विद एग्जांपल्स, न्यूमेरिकल्स के साथ में बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा। ओके, अब हम बात करते हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये वॉल है और क्या है? स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। तो सो दिस इज नोन एज मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ पे दो टर्म्स आती हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आपने इसके बारे में सुना होगा। You might have heard about these terms, distance and displacement. What is distance and what is displacement? Okay, we will discuss here what is the difference between the distance and the displacement. Just take the example. One example we will take. कोई person है और you can say one car. One car is moving from the point O. इस point O से move करती है. From the point O, one car is moving. And it is crossing point A
it is crossing point D and it is going up to point C. It is going up to point C. The distance between O to A is 5 kilometer. Distance A to B distance is 4 kilometer, and again B to C distance is 6 kilometer. This is 6 kilometer. A car is moving from O to A to B to C. पहले कार जो है, कार is going from O to C and again it is coming back to point A. फिर क्या है, पहले C तक जाती है, again it is coming back to point A. तो क्या है, now you have to tell, in this case now you have to tell that distance traveled by the car. Distance traveled by the car बतानी है. कार क्या है, कार is going from O to C and again it is coming back to point A. So what is the distance traveled by the car? What you will say, the distance traveled, first the car is going from point O to point A, तो 5 किलोमीटर ट्रेवल कर ली, ओके 5 किलोमीटर. देन A to B जा रही है, देन अगेन इट इज ट्रेवलिंग 4 किलोमीटर. ये कितना है, 4 किलोमीटर ट्रेवलिंग. ओके, देन B to C में कितना है, 6 किलोमीटर. ओके, तो पॉइंट O से पॉइंट C तक ट्रेवल करने में कितना हो गया, 5 + 4 9 + 6 15 किलोमीटर. अगेन इट इज कमिंग बैक टू पॉइंट A, तो 6 + 4 ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, अगेन यू ऐड 6 + 4, टोटल इज 5 4 9 6 15 15 6 21 + 4 25 kilometer. Means total distance traveled by the car when it travels from O to C, from O to C and C to A. Okay, and C to A. Now I want to know the displacement of the car. इस केस में if I want to know the displacement of the car, तो displacement क्या है, with respect to the origin. This is इस point O के respect पर we are measuring the distances. तो with respect to the origin, कार का displacement क्या है अभी, जब कार लौट के यहाँ पे पॉइंट ए पे आ गई है, इट इज 5 किलोमीटर. कितना है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना है, ओनली 5 किलोमीटर. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्टेंस? इफ यू सी, द डिस्टेंस इज द टोटल पाथ लेंथ. डिस्टेंस इज द टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाई एनी ऑब्जेक्ट, ट्रेवल्ड बाई एनी ऑब्जेक्ट. टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाई दिस कार कितनी थी, पहले यहां से यहां तक गई तो डिस्टेंस देगी, फिर लौट के आई तब कितनी डिस्टेंस हुई. तो टोटल पाथ लेंथ हमने कैलकुलेट की है. डिस्टेंस इज टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाई, कवर्ड बाई एनी ऑब्जेक्ट. ओके, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between initial and final position. The shortest distance between initial and final position. Initial position क्या थी, ये O is the initial position. Final position मतलब रिटर्न होके कार कहाँ पे आ गई है, पॉइंट A पे. तो फाइनल पोजीशन क्या है, A. इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 5 किलोमीटर. तो ये क्या हो गई, 5 किलोमीटर क्या है, 5 किलोमीटर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है. इसका मतलब देखिए इस पॉइंट पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों डिफरेंट फिनोमेना है. अच्छा, कहीं कहीं ऐसा पॉइंट होगा जहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल भी होंगे, डिस्टेंस कभी कभी डिस्प्लेसमेंट के इक्वल भी होगी. वो कौन कौन सा केस होगा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों के इक्वल हो जाए. जैसे कि पॉइंट O से व्हेन कार इज ट्रेवलिंग अप टू पॉइंट C, व्हेन फ्रॉम पॉइंट O कार इज ट्रेवलिंग टू पॉइंट C, तो क्या होगा, व्हाट इज द डिस्टेंस? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 5 + 4 + 6 15 किलोमीटर. ओके, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट क्या है, फाइनल पॉइंट ये है आपका, दिस इज फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन ये है.
तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये वाली डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 15 किलोमीटर। कितनी होगी ये? 15 किलोमीटर। मींस इस केस में क्या है? डिस्टेंस भी 15 किलोमीटर है और डिस्प्लेसमेंट भी 15 किलोमीटर है। ओके, तो डिफरेंस समझ में आ गया। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक चीज़ें हैं जो कि आगे आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। ओके, तो हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन किसे बोलते हैं और नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे बोलते हैं, दैट वी विल सी हियर। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए, मोशन में दो तरह के मोशन होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स द इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल distances in equal interval of time. What is the meaning of this? इसका मतलब क्या हुआ? When the object travels the equal distances in equal interval of time. इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, कोई ऑब्जेक्ट्स है या कोई बाइसिकल वाला है, जैसे कोई एक पर्सन है, ही इज राइडिंग द बाइसिकल, तो क्या है? इन द फर्स्ट 1 सेकेंड, पहले सेकेंड में क्या है? वो 5 मीटर चलता है। कितना चलता है? फर्स्ट सेकेंड में 5 मीटर चलता है। सेकेंड में जो है, ये सेकेंड में भी वो कितना चलता है? 5 मीटर चलता है। ओके, थर्ड सेकेंड में भी कितना चलेगा? अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो थर्ड सेकेंड में भी वो 5 मीटर चलेगा। ओके, इट मीन्स इन ईच सेकेंड, इन ईच इंटरवल ऑफ टाइम ऑफ 1 सेकेंड ही इज ट्रेवलिंग इक्वल डिस्टेंस मतलब कितना? हर एक सेकेंड में इट इज ट्रेवलिंग 5 मीटर। So such kind of motion when the object travels equal distances in equal interval of time is known as uniform motion. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना। व्हाट इज द यूनिफॉर्म मोशन? ओके, व्हाट इज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ द यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स different distances in equal interval of time. Okay, इसका मतलब in the second case, in the non-uniform motion, if a person is riding bicycle, तो क्या है? फर्स्ट सेकेंड में फॉर एग्जाम्पल ही इज ट्रेवलिंग 5 मीटर। पहले सेकेंड में वो कितना है? 5 मीटर चल रहा है। सेकेंड में हो सकता है उसकी स्पीड बढ़ गई। नाउ इन द सेकेंड दूसरे वाले सेकेंड में सेकेंड में जो है वो हो सकता है कितना चल रहा है? 6 मीटर। थर्ड सेकेंड में मे बी और उसने स्पीड अपनी बढ़ा ली, अब कितना चल रहा है? 8 मीटर थर्ड सेकेंड में। ओके, थर्ड सेकेंड में, ये सेकेंड में, ये फर्स्ट सेकेंड में। ओके, तो इसका मतलब क्या है? हर एक सेकेंड में, पहले सेकेंड में वो क्या है? 5 मीटर चल रहा है। सेकेंड में, दूसरे वाले सेकेंड में जो है 6 मीटर चल रहा है। थर्ड सेकेंड में वो कितना चल रहा है? 8 मीटर चल रहा है। मीन्स इन द ईच इंटरवल ऑफ टाइम ऑफ 1 सेकेंड, हर एक इंटरवल का टाइम कितना है? 1 सेकेंड। ये भी 1 सेकेंड, ये भी 1 सेकेंड, ये भी 1 सेकेंड। यहाँ 1 सेकेंड में 5 मीटर चल रहा है, यहाँ 1 सेकेंड में 6 मीटर चल रहा है, यहाँ पे 1 सेकेंड में 8 मीटर चल रहा है। यहाँ पे देखिए हर एक सेकेंड में कितना चल रहा था? इक्वल चल रहा था, 5 मीटर। सो सच काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, इसका मतलब क्या है? यहां से देखिए एक टर्म आती है, यहां से एक चीज आती है, रेट ऑफ मोशन। क्या है? रेट ऑफ मोशन का कुछ रेट है।
इसमें देखिए यूनिफॉर्म रेट था, इसमें नॉन यूनिफॉर्म रेट है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? नॉन यूनिफॉर्म इस रेट ऑफ मोशन को मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे देखिए रेट ऑफ मोशन का मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्स। यहाँ पर देखिए रेट क्या है? यूनिफॉर्म है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्स यहाँ पे डिफरेंट है रेट ऑफ चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे डिफरेंट है। तो इसको डिफाइन करने के लिए कोई टर्म रहनी चाहिए। इसको हम रेट ऑफ मोशन को कैसे डिफाइन करेंगे? समथिंग शुड बी देयर टू डिफाइन दिस, नो? सो व्हाट इज द टर्म टू डिफाइन दिस? दैट इज नोन एज स्पीड। उसी को हम क्या बोलते हैं? स्पीड। इस रेट ऑफ मोशन को डिफाइन करने के लिए हम टर्म यूज करते हैं स्पीड। तो हम देखेंगे यहाँ पे स्पीड क्या होती है। स्पीड को कैसे डिफाइन करते हैं? स्पीड इज डिफाइन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एनी ऑब्जेक्ट, अपॉन टाइम टेकन बाई ऑब्जेक्ट। ओके, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया ऑब्जेक्ट ने और टाइम कितना उसको लगा, उन दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं स्पीड। इसको डिनोट करते हैं बी से। एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ऑब्जेक्ट एस मान लेते हैं, उसको डिनोट करते हैं एस से, और टाइम टेकन टी। तो फॉर्मूला हो गया स्पीड का v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ही जगह स्पीड, हम हमेशा स्पीड के बारे में बात करते रहते हैं। इफ यू आर राइडिंग ए बाइक, कहते हो मैंने बाइक को 40 किलोमीटर पर आवर पे चल रही थी, मेरी बाइक की स्पीड कितनी थी? 40। यू से मेरी जो साइकिल मैंने आज चलाई 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, 20 की स्पीड पे चला रहा था साइकिल, या 30 की स्पीड पे मैंने साइकिल चलाई अपनी। सो ऑलवेज यू टॉक अबाउट द स्पीड। कोई ट्रेन मूव कर रही है तो इतनी स्पीड में जा रही है, कोई ट्रेन जो है कहते हैं कि 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। तो स्पीड इज ए वेरी कॉमन टर्म विच वी यूज इन आवर नॉर्मल डे टू डे लाइफ वी यूज द टर्म स्पीड। ओके, तो उसका फार्मूला क्या है? v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। अच्छा, इसका एसआई यूनिट अगर देखें, एसआई यूनिट, तो डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर। अपॉन टाइम का क्या होता है एसआई यूनिट? सेकेंड। तो स्पीड का जो एसआई यूनिट होता है वो मीटर पर सेकेंड। ये कैसा यूनिट है? एसआई यूनिट। एसआई यूनिट स्पीड का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। दूसरे भी बहुत सारे यूनिट होते हैं जो कि एसआई यूनिट नहीं होते हैं, लेकिन अदर यूनिट्स जो कि हम यूज करते हैं, जैसे किलोमीटर पर आवर, बहुत ही कॉमन टर्म है जो हम हमेशा ज़्यादातर जो यूज करते हैं। बाइक चल रही है तो बोलते हैं 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ट्रेन जा रही है तो बोलते हैं 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, या 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। तो ज़्यादातर हम इस टर्म को बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, किलोमीटर पर आवर को। लेकिन ऐसा यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। स्पीड को हम क्या बोलते हैं? स्पीड को अगर हम दूसरे तरीके से भी बोलना चाहें तो बोल सकते हैं द स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एनी ऑब्जेक्ट, इन यूनिट टाइम पर यूनिट टाइम। ओके, तो स्पीड इज आल्सो डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एनी ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। ओके, यहां से हम एक एग्जांपल लेंगे। वन बॉय, एक लड़का है, वन बॉय इज ट्रेवलिंग, यहाँ पे उसको जाना है, यहाँ घर है उसका, यहाँ पे उसका घर है। अब वो साइकिल से जो है, साइकिल से वो क्या है, उसको पॉइंट सी तक जाना है, यहाँ तक जाना है। ठीक है, पॉइंट सी तक जाना है। पॉइंट कहाँ तक? सी तक जाना है। और पॉइंट सी तक मतलब सोच लीजिए कि यहाँ पे घर है उसका, ये स्कूल है, उसे स्कूल जाना है। कहाँ जाना है? स्कूल। किससे? साइकिल से। ही इज गोइंग टू स्कूल बाई बाइसिकल। साइकिल से स्कूल जा रहा है। ओके, तो इस यहाँ से घर से स्कूल की डिस्टेंस जो है 5 किलोमीटर है। टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द होम, द डिस्टेंस ऑफ द स्कूल फ्रॉम द होम इज 5 किलोमीटर। तो फर्स्ट 1 किलोमीटर के लिए मान लीजिए, फर्स्ट 1 किलोमीटर के लिए उसकी स्पीड जो है
फर्स्ट 1 किलोमीटर को यू कैन से वो 10 मिनट में ट्रैवल करता है। कितना? 10 मिनट में। फर्स्ट 1 किलोमीटर को वो जो है 10 मिनट में ट्रैवल करता है। उसके बाद में नेक्स्ट 2 किलोमीटर जो है, नेक्स्ट 2 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है वो 15 मिनट में ट्रैवल करता है। नेक्स्ट 2 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो 15 मिनट में ट्रैवल करता है। ओके, बची हुई कितनी रह गई? 1 किलोमीटर ये, 2 किलोमीटर ये, बची हुई कितनी रह गई? 1 + 2 + 3, इसको मान लीजिए 3 किलोमीटर। इस टोटल डिस्टेंस को मान लीजिए 6 किलोमीटर। कितना मान लीजिए? 6 किलोमीटर। नेक्स्ट 3 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो 15 मिनट में ट्रेवल करता है। मतलब पहले स्पीड कम थी, फिर उसने स्पीड और बढ़ा दी, फिर उसने स्पीड और बढ़ा दी। इसका मतलब द स्पीड ऑफ हिज साइकिल, साइकिल की जो स्पीड क्या है वो चेंज हो रही है। पहले 1 किलोमीटर को 10 मिनट में, नेक्स्ट 2 किलोमीटर को 15 मिनट में, नेक्स्ट 3 किलोमीटर को 15 मिनट में ट्रेवल कर रहा है। तो इफ somebody is asking what is his speed, what is his speed, उसकी स्पीड क्या होगी? कैन यू टेल मी हिज स्पीड? क्या होगी उसकी स्पीड? आप बता सकते हैं क्या इस फॉर्मूले से? इससे डायरेक्ट नहीं बता सकते, क्योंकि उसकी स्पीड क्या है, थोड़े थोड़े टाइम के बाद इट इज चेंजिंग। आफ्टर सम टाइम द स्पीड ऑफ हिज साइकिल इज चेंजिंग। तो उसके लिए एक टर्म आती है। इसका मतलब हम एक पर्टिकुलर टाइम, हम एक अगर यहाँ पॉइंट ए से उसके घर से और इसके स्कूल तक पूछें कि वो किस स्पीड से गया, तो वी कैन नॉट टेल विद दिस फार्मूला। ठीक है, उसके लिए क्योंकि उसकी स्पीड क्या है, चेंज हो रही है थोड़े टाइम के बाद में, थोड़े टाइम के बाद चेंज हो रही है। तो उसको डिफाइन करने के लिए हम क्या निकालते हैं? एवरेज स्पीड निकालते हैं। ऐसे केसेस में हम क्या निकालते हैं? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। ज़्यादातर हम जब बात करते हैं तो एवरेज स्पीड की ही बात करते हैं। तो एवरेज स्पीड हम कैसे निकालते हैं? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो क्या है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट अपॉन टोटल टाइम टेकन। वैसे हम क्या, इससे हम क्या निकालते हैं? एवरेज स्पीड। इससे निकालते हैं एवरेज स्पीड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो इस केस में इफ आई आस्क यू व्हाट इज द एवरेज स्पीड, कैन यू टेल मी द एवरेज स्पीड? समझ में आ गया ना एवरेज स्पीड का क्यों जरूरत पड़ती है? नाउ इट इज क्लियर व्हाई एवरेज स्पीड इज रिक्वायर्ड। क्योंकि व्हेन द स्पीड इज चेंजिंग आफ्टर सम टाइम्स you have to define in the terms of average speed. यहाँ से average speed if I ask you, can you tell me the average speed? एवरेज स्पीड निकालने के लिए पहले तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालनी है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालनी है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड यहाँ पे कितनी है? 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर, 3 + 2 + 1 कितनी है? टोटल 6 किलोमीटर। कितनी है डिस्टेंस? 6 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन कितना है? 10 + 15 + 15, 15 + 15 कितना हो गया? 15 + 15 30 + 10 कितना हो गया? 40, 40 मिनट, 40 मिनट। अब देखिए यहाँ पे ना तो ये ऐसा यूनिट है ना तो ये ऐसा यूनिट में है, तो हम सबसे पहले इनको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। ऐसा यूनिट में किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लिया, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000 मीटर। तो 1000 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 40 मिनट को किस में बदल लेंगे? सेकेंड में। तो 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 1 मिनट इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड? 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ओके, तो 6000 अपॉन 40 इंटू 60, इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल आउट हो गए। 6 से क्या हो जाएगा? 6 कैंसिल आउट हो गया। क्या आ गया? 10/4। 10/4 को डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20, तो कितना आ गया? 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी व्हाट इज द एवरेज स्पीड? व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द, एवरेज स्पीड ऑफ द पर्सन व्हेन ही इज, एवरेज स्पीड ऑफ द स्टूडेंट व्हेन ही इज ट्रेवलिंग फ्रॉम his home to his school. What is his average speed? It will be 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम एवरेज स्पीड
कैलकुलेट करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एवरेज स्पीड और स्पीड के बारे में जानना। क्यों हम एवरेज स्पीड को के फार्मूले की हमें ज़रूरत पड़ती है, इन केसेस की वजह से। क्योंकि क्या है, स्पीड को कभी भी हम क्या है वैरी करते रहते हैं। जैसे बाइक ही चलाते हैं तो बाइक में क्या है एक्सीलरेटर देते हैं, कभी वो 30 पे होती है, कभी 40 पे होती है, कभी 50 पे होती है बाइक। इसका मतलब क्या है, थोड़े थोड़े टाइम के बाद में स्पीड इज चेंजिंग। तो उसके लिए डिफाइन हम करते हैं क्या, एवरेज स्पीड। तो यहाँ से हमने एग्जांपल दिखा दिया एवरेज स्पीड का, क्यों जरूरत पड़ती है और किस तरह से हम उसको कैलकुलेट करते हैं। सो हमने एवरेज स्पीड और स्पीड के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम देखेंगे एक टर्म आती है, दैट इज स्पीड विद डायरेक्शन। स्पीड विद डायरेक्शन। अभी तक हमने जो है स्पीड के बारे में तो पढ़ा था, लेकिन हमने ये नहीं डिस्कस किया कि वो स्पीड किस डायरेक्शन में है। स्पीड विद डायरेक्शन। स्पीड विद डायरेक्शन मीन्स दिस इज आल्सो नोन एज द वेलोसिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर इफ आई एम गोइंग फ्रॉम दिस पोजीशन, ये पोजीशन है कोई O, इस पोजीशन से मैं ट्रेवल कर रहा हूं और मैं x डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा हूं, ठीक है, x डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा हूं। मेरी स्पीड जो है वो है 50 किलोमीटर पर आवर है। मेरी स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर है। तो ये तो मेरी स्पीड हो गई, दिस इज माई स्पीड, ओके, 50 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज योर स्पीड? इफ समबडी आस्क्स व्हाट इज माई स्पीड, आई विल टेल माई स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर। ओके, इफ आई से माई स्पीड इन एक्स डायरेक्शन, माई स्पीड इन एक्स डायरेक्शन मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड मैं ले लूं प्लस डायरेक्शन की भी बात करूं, किस डायरेक्शन में है स्पीड, इन एक्स डायरेक्शन। If I am telling my speed in x direction, this is known as the velocity. Means if you are talking about the velocity, you have to tell about the speed plus direction also. In which direction you are going. If anybody is asking me what is your velocity, I will say my velocity is 50 kilometer per hour. My velocity is 50 kilometer per hour in x direction. So this is the complete statement for the velocity. So do you understand what is the difference between the speed and the velocity? Speed only talks about the magnitude of the rate of motion, and the velocity talks about the magnitude as well as the direction of the motion, okay? तो velocity का फार्मूला क्या होगा, सेम वेलोसिटी को हम जो डिफाइन करते हैं, वहां पे क्या था, स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट अपॉन टाइम टेकन। यहां पे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अपॉन टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, और ये बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या था, डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ओके, फाइनल पोजीशन। तो वेलोसिटी का ये फार्मूला निकल आया, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस की जगह क्या आता है, टर्म डिस्प्लेसमेंट आती है। सेम वहां पे हम एवरेज स्पीड की बात करते थे, यहाँ पे भी एवरेज वेलोसिटी होती है। यहाँ पे भी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं वो देखेंगे। एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अगर हमसे कोई एवरेज वेलोसिटी पूछता है तो हम कैसे डिफाइन उसको करेंगे, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन द टाइम टेकन। तो ये सेम एवरेज स्पीड की तरह यहाँ पे भी टर्म क्या होती है, एक एवरेज वेलोसिटी होती है। क्योंकि वेलोसिटी भी क्या हो सकता है थोड़ी टाइम के लिए
मैं क्या है 50 किलोमीटर पर आवर जा रहा हूँ एक्स डायरेक्शन में, 50 किलोमीटर पर आवर क्या जा रहा हूँ एक्स डायरेक्शन में जा रहा हूँ। अब क्या हो सकता है, मैंने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी, 50 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में था पहले, नाउ आई एम गोइंग विद 50 किलोमीटर पर आवर इन वाई डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन। तो ये एक्स डायरेक्शन में था, अब ये वाई डायरेक्शन में हो गया मोशन। इसका मतलब मेरी वेलोसिटी चेंज हो गई। देखो इस केस में क्या है, इस केस में देखिए पहले 50 किलोमीटर पर आवर आप एक्स डायरेक्शन में जा रहे थे, नाउ यू आर ट्रेवलिंग 50 किलोमीटर पर आवर इन वाई डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड इज सेम। इफ एनीबॉडी इज आस्किंग व्हाट इज योर स्पीड, यू विल से माय स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर। बट व्हाट इज योर वेलोसिटी, व्हाट इज योर वेलोसिटी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी? Your velocity is changing because in the starting from point A to point B, your velocity is 50 km per hour in x direction, and from point B to point C, your velocity is 50 km per hour in y direction. Direction change हो गई. If any of either magnitude or direction changes, velocity will change. वेलोसिटी कब चेंज होगी? चाहे आप डायरेक्शन उसकी चेंज कर दें, अगर डायरेक्शन चेंज कर देंगे तब भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, और मैग्नीट्यूड चेंज कर देंगे तब भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, व्हेन डायरेक्शन चेंजेस वेलोसिटी आल्सो चेंजेस। भले ही चाहे आपका मैग्नीट्यूड इज सेम, व्हेन द मैग्नीट्यूड इज सेम बट डायरेक्शन इज चेंजिंग, योर वेलोसिटी इज चेंजिंग। ओके, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं, कोई एक एग्जांपल देख लेते हैं। व्हाट इज दैट एग्जांपल? If a person is traveling, if a person starts from his journey from Bareilly to Nainital, okay, and via car, किससे जा रहा है? via car, किससे जा रहा है? by a car, कार से जा रहा है। यहाँ पे उसके मीटर की रीडिंग थी 2000 किलोमीटर एट बरेली जब वो पहुंचा था। नैनीताल पे उसकी जो है डिस्टेंस कितनी है? 2200 किलोमीटर। कितनी है रीडिंग मीटर की? 2200 किलोमीटर। और इस जर्नी को उसे ट्रैवल करने में ही टेक्स 4 आवर्स। सो व्हाट इज द एवरेज स्पीड? कैन यू टेल मी द एवरेज स्पीड? सो व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन बरेली टू नैनीताल। कितनी हो जाएगी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड? 2200 minus 200 minus 2000 upon 4 hour upon time taken कितना हो गया? 4 hours। तो 200 upon 4 कितना आ गया? 50 किलोमीटर पर आवर। उसकी स्पीड कितनी है? 50 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड कितनी है उसकी? 50 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? 50 किलोमीटर पर आवर को, किलोमीटर को पहले किलोमीटर जो है नोमिनेटर में उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, मीटर में कन्वर्ट हो गया। आवर्स जो डिनोमिनेटर में है उसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर से 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगेन इफ यू मल्टीप्लाई बाई 60 इट विल कन्वर्ट इनटू द सेकेंड। ओके, यहाँ से 2 0 से 2 0 ये कैंसिल हो गए, तो इट विल बी 50। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे कितना बचा? इसको 2 से कैंसिल कर देंगे। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 25 जा, तो इट विल बी इक्वल टू 125/9 मीटर पर सेकेंड। ओके, इसको डिवाइड अगर करेंगे 13.9, अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा? 13.9 मीटर पर सेकेंड। तो ये इस तरह से समझ में आ गया एवरेज स्पीड, हाउ वी कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। आई विल टेक वन मोर एग्जांपल। क्या है? राम जो है एक रिवर में स्विम करता है। एक रिवर है, राम स्विम्स इन ए रिवर। उस रिवर की जो विड्थ है वो है 90 मीटर। कितनी है विड्थ? 90 मीटर। वो स्विम कर रहा है इसमें। क्या कर रहा है? स्विम कर रहा है इसमें। ओके, वो उसको स्विम करता है 90 मीटर, यहाँ से यहाँ तक जाता है।
रिवर के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाता है स्विमिंग करके और फिर वापस आता है, मतलब पहले यहाँ तक जाता है फिर यहाँ तक वापस आता है। पहले यहाँ से यहाँ तक जाता है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है, फिर बी से फिर ए पे आ जाता है लौट के। तो कह रहे हैं ही टेक्स 1 मिनट टू कंप्लीट 180 मीटर। 180 मीटर को कंप्लीट करने में उसे कितना लगता है? 1 मिनट लगता है। 1 मिनट टाइम कितना है? टाइम टेकन कितना है उसको? 1 मिनट लगता है। मतलब यहां से यहां तक जाने में और वापस आने में उसको टोटल कितना ट्रेवल कर लेगा? 90 प्लस 90 जाने में और 90 आने में। इसका मतलब उसको 180 मीटर ट्रेवल करने में 1 मिनट लगता है। ठीक है। दे आर आस्किंग फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड फाइंड आउट द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, दोनों बतानी है। ड्यूरिंग दिस राउंड ट्रिप, यहां से यहां तक गया फिर यहां से वापस आया। सो ड्यूरिंग दिस कंप्लीट मोशन व्हाट इज इज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड निकालेंगे, कैसे निकालते हैं एवरेज स्पीड के लिए? एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एनी ऑब्जेक्ट, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द राम ने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितनी की है? 90 जाने में और 90 आने में, 180 मीटर। कितना? 180 मीटर। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ये हो गई अपॉन टाइम टेकन उसको कितना लगा? 1 मिनट। 1 मिनट देखिए, ये तो 180 तो मीटर में है, लेकिन ये टाइम किस में है? मिनट में है। तो मिनट को हम ऐसा यूनिट में सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 60 से। अभी किस में कन्वर्ट हो गया? टाइम सेकेंड में हो गया। ठीक है। तो 180 अपॉन 60 इसको कैंसिल कर दिया, कितना आ गया? 6 से अगर 18 को 6 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 3 मीटर पर सेकेंड। उसकी एवरेज स्पीड कितनी आ गई? व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द राम? एवरेज स्पीड ऑफ द राम इज 3 मीटर पर सेकेंड। Okay, now how you will calculate the average velocity? Average velocity is the displacement of the object upon time. अच्छा, displacement means the shortest distance between the initial and the final position. देखिए initial position ये थी राम की, final position भी राम की क्या है? ये है। इसका मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वो जहां से स्टार्ट की थी उसने जर्नी वहीं पे लौट के आ गया। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इज 0। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उन दोनों के बीच की अब डिस्टेंस क्या है? 0। वो जहां से स्टार्ट की थी उसने जर्नी वहीं पे वापस आ गया। सो डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो इस फार्मूले में रख देंगे डिस्प्लेसमेंट 0 अपॉन टाइम टेकन सेम 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। तो यहां से एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई? 0 मीटर पर सेकेंड। सो देखिए यहाँ पे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अगर इस केस में हम देखें एवरेज स्पीड जो है 3 मीटर पर सेकेंड है, एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो वो 0 मीटर पर सेकेंड है। सो दैट इज द डिफरेंस। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द न्यू टर्म रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी? जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया था, कोई चीज़ आप ड्राइव करते हैं, इधर यू ड्राइव साइकिल और मोटरसाइकिल और एनी चीज़, तो क्या है स्पीड जो रहती है, स्पीड को हम ऐसा तो नहीं है हमेशा 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चलाते हैं या 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चलाते हैं बाइक को, या साइकिल को 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चलाते हैं। ऐसा नहीं है। इट इज नॉट लाइक दैट। द स्पीड चेंजेस विद द टाइम। समटाइम्स व्हेन यू गिव द एक्सीलरेटर यू स्टार्ट फ्रॉम 20 किलोमीटर पर आवर, फिर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जाती है, फिर 40 पे जाएगी, देन 50 पे जाएगी, समथिंग लाइक दैट। मीन्स द स्पीड इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। Time. So that is known as rate of change of velocity. This is known as the rate of change of velocity. This is named as acceleration. इसी को बोलते हैं rate of change of velocity is known as acceleration. बहुत ही important है
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सेलरेशन, व्हाट इज एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और यहाँ पे लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या, इसको बोल सकते हैं फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, इस एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं ए से। किससे डिनोट करते हैं एक्सेलरेशन को? ए से। एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते हैं? ए से। तो इसका अगर हम फार्मूला लिखना चाहें, फाइनल वेलोसिटी को अगर हम v बोलते हैं और इनिशियल वेलोसिटी को अगर हम u से डिनोट करते हैं, टाइम को अगर t से करते हैं, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखिए। v माइनस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ द, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ द एक्सेलरेशन? वेलोसिटी की यूनिट हो, ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है? पर सेकेंड। तो सेकंड से सेकंड, ये यहाँ पे भी सेकंड डिनोमिनेटर में, ये डिनोमिनेटर में सेकंड से सेकंड मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यूनिट क्या आ जाएगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ऐसा ही यूनिट ऑफ द एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो फर्स्ट व्हाट इज द एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके, देखिए व्हेन द एक्सेलरेशन, direction of velocity and direction of acceleration is same, when the direction of acceleration and direction of velocity is same, it is taken as positive, acceleration is taken as positive। जब दोनों की डायरेक्शन अगर सेम हो, velocity और acceleration की डायरेक्शन if it is same, then it is acceleration is taken as positive। ये साइन कन्वेंशन है इसका। acceleration कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है? जो कि क्या होती है? डायरेक्शन जिसमें डिफाइन होती है। ऐसे ही वेलोसिटी कैसी है? वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ में और किसकी जरूरत पड़ती है? डायरेक्शन की भी। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है वेक्टर क्वांटिटी में। सो एक्सेलरेशन इज ए कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, स्पीड की बात करें तो स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्यों? ओनली वी टॉक अबाउट द मैग्नीट्यूड, हियर ओनली वी टॉक अबाउट द मैग्नीट्यूड। सो स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। ओके, इफ वी टॉक अबाउट द डिस्टेंस, डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी थी? डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी थी। इसमें भी हम क्या बात करते थे? सिर्फ मैग्नीट्यूड की। ओके, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी थी? डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देखते हैं। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ओके, तो ये स्केलर और वेक्टर के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो गया यहाँ से। तो हम डिस्कस क्या कर रहे थे? वी आर डिस्कसिंग अबाउट द साइन कन्वेंशन फॉर द एक्सेलरेशन। व्हेन द एक्सेलरेशन एंड द वेलोसिटी बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इज कंसीडर्ड टू बी पॉजिटिव, एंड व्हेन द एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द वेलोसिटी, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, दैट टाइम एक्सेलरेशन विल बी टेकन एज नेगेटिव। जब अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है वेलोसिटी के, दैट टाइम एक्सेलरेशन विल बी कंसीडर्ड एज नेगेटिव एक्सेलरेशन। ओके, तो ये एक्सेलरेशन के बारे में हो गया। एक्सेलरेशन का हम एक एग्जांपल लेते हैं। वी विल टेक वन एग्जांपल हियर। देखिए, हम साथ साथ में थ्योरी भी पढ़ते जा रहे हैं और उसका एक एक एग्जांपल न्यूमेरिकल भी देखते जा रहे हैं। कोई स्टूडेंट ले लीजिए, पीयूष स्टार्ट्स हिज बाइसिकल। वो अपनी साइकिल स्टार्ट करता है। पीयूष स्टार्ट्स हिज साइकिल, Piyush starts his cycle and attains a speed of 9 meter per second. Attains a speed of
and attains a speed of 9 मीटर पर सेकेंड in 30 सेकेंड। 30 सेकेंड पीयूष क्या है, वो साइकिल उठाता है और साइकिल उठाने के बाद में 30 सेकेंड में ही वो जैसे ही स्टार्ट करता है साइकिल को 30 सेकेंड में उसकी स्पीड कितनी हो जाती है, 9 मीटर पर सेकेंड होता है। आफ्टर सम टाइम क्या है, आफ्टर समटाइम्स he applies brake, he applies brakes and his speed comes down to, अब ब्रेक अप्लाई करेगा तो स्पीड क्या होगी, घटेगी, स्पीड कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड इन नेक्स्ट 5 सेकेंड। अगले 5 सेकेंड में उसकी जो स्पीड है वो कितनी हो जा रही है, घट के 4 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। डिफाइन द एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन को शॉर्ट में मैंने लिख दिया है। डिफाइन द एक्सीलरेशन इन बोथ द केसेस। बोथ द केसेस मतलब जब वो साइकिल स्टार्ट करता है और उसकी स्पीड 9 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, जब वो ब्रेक अप्लाई करता है और ब्रेक अप्लाई करने के बाद जब उसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो बोथ द केसेस, इन बोथ केसेस में हमें क्या बताना है, एक्सीलरेशन बताना है। वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सीलरेशन। देखिए कैसे बताएंगे, यहाँ से देखिए, यहाँ पे एक्सीलरेशन पहले केस में देखेंगे। पहले केस में व्हेन ही स्टार्ट्स, देखिए देखने में बड़ा लग रहा है क्वेश्चन ये कि यहाँ पे 2 लाइनों में इसको हम खत्म कर देंगे। एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन को मैंने बताया था क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। जब वो स्टार्ट्स करता है साइकिल स्टार्ट करता है तो सबसे पहले एक्सीलरेशन का यहाँ पे फार्मूला लिख लीजिए, v माइनस यू अपॉन टी। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 9 मीटर पर सेकेंड, और इनिशियल वेलोसिटी जब वो स्टार्ट करता है तब स्टार्ट करते टाइम वेलोसिटी कितनी थी, 0। तो u की वैल्यू क्या है, 0। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी हो जा रही है, 9 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब 9 माइनस 0, जब वो स्टार्ट कर रहा है भाई साइकिल तो 0 से ही स्टार्ट करेगा, ऑब्वियसली स्टार्टिंग स्पीड तो 0 रहेगी ना। अच्छा, फाइनल कितने टाइम में 9 मीटर पर सेकेंड अटेंस हो जा रही है, 30 सेकेंड। तो टाइम कितना है, 30। तो 9 अपॉन 30, 3 से डिवाइड कर दीजिए 3, तो ये 3 अपॉन 10 कितना आ जाएगा, 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, पहला वाला क्वेश्चन हो गया। नाउ सेकेंड केस व्हेन Piyush applies the brakes in the cycle, तो उसकी velocity it comes down to 4 मीटर पर सेकेंड in next 5 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन निकालना है, सेम फार्मूला लगाएंगे, v माइनस यू अपॉन टी। नाउ अब वेलोसिटी यहाँ पे v क्या है, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, 4 मीटर पर सेकेंड हो जा रही है, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 9 मीटर पर सेकेंड थी। टाइम कितना है, 5 सेकेंड लग रहे हैं इसको। ओके, तो 4 माइनस 9, याद रखिए फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, 4 माइनस 9 अपॉन 5, तो क्या आ गया, -5 अपॉन 5। -5 अपॉन 5 कितना आ जाएगा, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए यहाँ पे जो एक्सीलरेशन कैसा है, निगेटिव। कैसा है यहाँ पे एक्सीलरेशन इज निगेटिव। एक्सीलरेशन यहाँ पे निगेटिव क्यों है, जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो आपकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, और एक्सीलरेशन नेगेटिव का मतलब क्या है, एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है। एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में है, एक्सीलरेशन इज इन अपोजिट डायरेक्शन। ये नेगेटिव एक्सीलरेशन को रिटार्डेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सीलरेशन को हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं। रिटार्डेशन मतलब किसी चीज को धीमा करने वाली चीज हो। जब ये ब्रेक अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इसीलिए कार या साइकिल जो है क्या होती है, वो उसकी स्पीड डिक्रीज होने लगती है। तो यहाँ से एक्सीलरेशन दोनों केसेस में समझ में आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, आगे बहुत ज़्यादा यूज में आने वाला है। ओके, तो ये आपका यहाँ से एक्सीलरेशन कंप्लीट हो गया। ओके।